Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you to the lecture 26 of this Statistics and Probability Theory course. In last class, we continued our discussion on normal distribution, and we saw that how we can approximate normal distribution, rather binomial distribution using normal distribution. Basically उसमें हमने जो किया था, basically what we did was कि if I write the expression for normal distribution, which is n, x, mu and sigma है, that is equal to 1 over 2 pi square root sigma e to the minus 1 by 2 x minus mu divided by sigma. और binomial जो distribution है, that was obviously classified by अगर हम उसको देखें तो that was b of x, n and p उसके parameters थे, and that was basically n, x, p to the x, 1 minus p और q to the n minus x. तो हमने ये कहा कि initially जो Poisson distribution है, that is limiting case of this. When n becomes very large, तो binomial distribution जो है that tends to Poisson distribution. But we try to see कि क्या हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो व्हाट वी डिड, हमने म्यू जो है दैट वाज रिप्लेस्ड बाय एनपी विच इज़ मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और जो सिग्मा था दैट वाज एन पी क्यू स्क्वायर रूट where q was equal to 1 minus p. That we also replaced in this particular equation, let's say 1, or we compared the values from the tables. यानी हमने उसको tables में जाके देखने की कोशिश की. We saw कि when probabilities were small, तो 5 to 6 iterations या n is equal to 5 और 6 हमें एरर जो है वो 0 हो जाती थी. बट फॉर लार्जर प्रोबेबिलिटीज़ लाइक 0.5 और उसके अराउंड जो प्रोबेबिलिटी है, व्हेन n गोज़ टू रादर 50, तो उसमें से हम 20 के करीब आइट्रेशंस पे जाके एरर को 0 करते हैं. बट एट ए गुड नंबर लाइक 10 और 12, this gives very good approximation of binomial distribution. So that help us in concluding कि अगर n जो है that is sufficiently large, तो we can approximate binomial distribution by normal distribution as well. Then जो उसके बाद हमने जो चीज़ देखी थी that was about skewness of the curves, कि कर्व्स जो हैं या डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो स्क्यूड किनको कहते हैं. स्क्यूनेस जो है दैट इज़ काउंटर पार्ट और अपोनेंट ऑफ सिमेट्री. सिमेट्री जो होगी दैट विल बी अबाउट सम ऑरिजिन, सम एक्सिस और सम पॉइंट, कि उसके दोनों तरफ आप जाएं या इन एनी डायरेक्शन आप जाएं, यू विल गेट सेम सिचुएशन. दैट विल बी रिगार्डेड एज सिमेट्री. बट इफ़ वी डोंट हैव सच सिचुएशंस, लाइक वी कैन हैव कर्व्स like this, that we have a longer tail on one side and shorter on the other side. So the curves जो हैं they are called, for example, this is negatively skewed and this is positively skewed curve. So this can be possible in both discrete and continuous cases. Normal distribution जो थी that was an
symmetric curve जो कि that was symmetric about an axis that was passing through its mean. और उसके बाद हमने देखा कि जो नेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनमें हमने गैमा डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस को डिफाइन किया. जो गैमा डिस्ट्रीब्यूशन थी उसके लिए वी सॉ इट्स प्रॉपर्टीज एज वेल के इफ वी हैव दिस गैमा ऑफ अल्फा तो दैट कैन बी रिटन एज अल्फा -1 इंटू गैमा ऑफ अल्फा -1. और अगर अल्फा जो है ये नंबर हो यानी इंटीजर हो तो गैमा ऑफ n जो है दैट विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल, यानी एंड पे चूंकि हमें गैमा ऑफ 1 मिलेगा तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होती है. सिमिलरली वी आल्सो प्रूव्ड दैट कि गैमा ऑफ 1/2 जो था दैट वाज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई. तो दीज वर द प्रॉपर्टीज जो कि हमने गैमा डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से देखी थी एंड वी डिफाइंड गैमा डिस्ट्रीब्यूशन. और exponential distribution was a special case of gamma distribution in which alpha was equal to 1. In all those cases we saw कि अगर जो in these distribution have to be probability distributions, इनको qualify करना चाहिए the definition of the probability distribution, यानी कि the values will be non-negative and their sum or integration along whole the interval should be equal to 1. So that was all about the last class, which basically concluded our section on probabilities and distributions. Now we are going to go back to statistics, जहाँ पे कि हमने इनिशियली स्टेटिस्टिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन किया था. जैसे we defined mean, we actually defined median and mode etc. But more important जो quantity है that is mean and variance, जिनको कि हम throughout our course in one form or the other define करते रहेंगे, use करते रहेंगे. So हमारी जो स्टेटिस्टिकल थ्योरी है या स्टेटिस्टिकल इन्फेरेंस है दैट आल्सो बेसिस ऑन दीज टू फंडामेंटल क्वांटिटीज. ये लास्ट सेंटेंस दोबारा बोल रहा हूँ. बेसिकली जो स्टैटिस्टिक्स के जितने भी हम टूल्स या पैरामीटर्स या स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस या जो भी हम उसकी यूज़ करना चाहें टेक्निक्स, उनमें दीज टू पैरामीटर्स मीन एंड वेरिएंस विल हैव सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस. उसमें वी विल सी कि कहीं पे मीन की ज़रूरत है, कहीं पे वेरिएंस की ज़रूरत है, कहीं पे स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत है, कहीं पे कोवेरिएंस की ज़रूरत है. बट मोर और लेस हमारी जो वैल्यूज़ होंगी दे विल बी बेस्ड ऑन, यानी जितनी भी हम क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करेंगे देखेंगे उनके अंदर किसी न किसी फॉर्म में मीन और वेरिएंस का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूर होगा. So today basically the topic that we are going to start is estimation of parameters. Estimation basically is नाम से ही जाहिर है कि किसी भी चीज़ को अगर हम estimate करना चाहते हैं, for example we have to define a quantity, या हम किसी एक क्वांटिटी के बारे में बताना चाहते हैं या प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो सकती है. दैट वुड बी एन एस्टिमेशन और एस्टिमेट ऑफ दैट पैरामीटर. सो वी बेसिकली एस्टिमेट, फॉर एग्जांपल हम वी आर इन योर क्लास, गुड नंबर ऑफ 30 पीपल आर सिटिंग देयर, और हम उन लोगों से बेसिकली वी वांट टू फाइंड, एस्टिमेट करना चाहते हैं कि जनरली फॉर एग्जांपल यू आर इन 4th सेमेस्टर, तो 4th सेमेस्टर के जितने भी लोग होंगे ऑफ अ BCS प्रोग्राम और
एनी BS प्रोग्राम, उनकी एज क्या हो सकती है। तो दैट वुड बी समथिंग द प्रोसेस जो कि एक एस्टिमेट कहलाएगा। Similarly, we can talk about height, we can talk about any other parameter जो कि हमें किसी भी statistical analysis में या किसी भी quantity की फॉर्म में हमें जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले जो चीज़ हम estimation of parameters में we will just refresh our ideas about population and sample। इसको हम शुरू में इस कोर्स के स्टार्ट में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन एंड व्हाट इज़ सैंपल। आई विल जस्ट रिफ्रेश दोज कॉन्सेप्ट्स और टॉक जो हमने उस वक्त की थी कि पॉपुलेशन जो है दैट इज़ समथिंग जो कि थारोली वन टू ऑल सब लोगों को इंक्लूड करेगी, दैट वुड बी कॉल्ड अ पॉपुलेशन। और जो सैंपल है that will be a part of that population, यानी उस में से आप एक उसका सबसेट ले लें तो that would be called a sample। अब population जो है उसके लिए नॉर्मली जो हम करते हैं that is census, जिसे हम you know के in every country and in Pakistan as well census is done after every 10 years। और सेंसस में आबादी का अंदाज़ा नहीं लगाया जाता, सेंसस में आबादी का अंदाज़ा नहीं लगाया जाता। सेंसस में वी एक्चुअली काउंट ईच एंड एवरी पर्सन। जो सेंसस वर्कर्स होते हैं दे गो टू एवरी होम एवरी डोर और वहाँ पे दे चेक कि इस घर में कितने लोग हैं एंड देन दे आर काउंटेड। तो उससे हम पॉपुलेशन बेसिकली मेजर करते हैं, इट्स नॉट एस्टिमेटेड। सैंपल जो है दैट इज समथिंग जो कि एक नमूना है उस पॉपुलेशन का, यानी उस पॉपुलेशन को हम इस तरह से उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं कि दे रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। यानी जो सैंपल है दैट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स के पॉपुलेशन जो है वो किस किस्म की होगी। यानी अगर हमने किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में अंदाज़ा लगाना हो, पॉपुलेशन के बारे में कोई एस्टीमेट करना हो, तो हमें सैंपल जो है वो हर तरह का चूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सिर्फ बच्चों का डेटा लें और उससे हम एस्टिमेट करना चाहें एनी पैरामीटर ऑन द पॉपुलेशन, तो डज इट मेक एनी सेंस कि हम पॉपुलेशन के बारे में कोई बेहतर कंक्लूजन ड्रा कर सकेंगे? विल वी बी एबल टू इन्फर एनीथिंग दैट विल बी मीनिंगफुल, जो कि हम सिर्फ एक स्मॉल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, चाहे वो सैंपल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसके बारे में हम बच्चों के लिए तो कोई वैल्यूएबल इन्फ्रेंस डिडक्ट कर सकेंगे, इन्फर कर सकेंगे, बट नॉट फॉर होल पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम 10 साल से कम उम्र बच्चों की हाइट मेजर करते हैं और कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान की जो हाइट है वो एवरेज उसकी फॉर एग्जांपल 4.5 फीट है, यानी उसको अगर हम एक्सट्रापोलेट करें ऑन होल पॉपुलेशन, तो दैट विल बी बेसिकली रॉन्ग आंसर। हमारा जो एस्टीमेट होगा दैट विल बी टोटली रॉन्ग। हमें हर तरह के लोगों को हमें देखना पड़ेगा कि एक तो अगर हमने ग्रोन अप्स की या एवरेज हाइट की बात करनी है तो वी विल टॉक अबाउट द पीपल हु आर अबव 18, चूँकि जो 18 पे जाके तकरीबन कद जो है दैट गेट्स मैच्योर्ड, उसके बाद इट डज नॉट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। तो हम 18 प्लस लोगों का सैंपल लें। वी कैन टॉक अबाउट मेन सेपरेटली एंड विमेन सेपरेटली, क्योंकि दोनों की हाइट्स में फ़र्क होता है। जनरली भी वी कैन टॉक अबाउट एवरीवन, यानी टोटल पॉपुलेशन का, ग्रोन अप पॉपुलेशन का,
देख सकते हैं। एज ग्रुप्स में वी कैन टॉक अबाउट दोज थिंग्स। हमने अगर लिटरेसी रेट देखना है तो लिटरेसी रेट के लिए फॉर एग्जांपल वी विल हैव टू, अगर किसी बड़े शहर में हम करते हैं तो द वैल्यू विल बी डिफरेंट, बट इफ वी गो डाउन इन लाइक सदर्न पंजाब इन सम पार्ट्स ऑफ KPK और जो ऐसे दूर दराज इलाके हैं सिंध के, इंटीरियर सिंध के, तो हमें यहाँ पे या इवन इन बलूचिस्तान जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे पॉपुलेशन जो है उसका लिटरेसी रेट भी हमें अपने सैंपल में हमें वहाँ से भी लोगों को इंडक्ट करना पड़ेगा ताकि वी आर एबल टू प्रिडिक्ट एग्जैक्टली के व्हाट कैन बी द पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट क्या हो सकता है या क्या होगा, अगर हमने उसका एस्टीमेट करना है। हम अगर किसी ऐसे किसी कॉलेज में जाके लिटरेसी रेट चेक करने की कोशिश करें कि वहाँ पे भी सब जगहों से लोग आए होते हैं, तो दैट वुड बी समथिंग जो कि हमारा सैंपल बड़ा गलत होगा। तो इसलिए सैंपल हम चूज करते हैं एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है दैट इज होल पॉपुलेशन जो वन टू ऑल सब लोगों को, सब चीज़ों को, सब क्वांटिटीज़ को कवर करती है। पॉपुलेशन के ऊपर हम अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं और जो उससे हम इन्फर करते हैं मेथड्स, उससे जो हम इन्फर करते हैं कंक्लूजन्स या रिजल्ट्स, दैट आर बेसिकली व्हाट विल बी द स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, और वो हम उनको पॉपुलेशन के ऊपर एक्सट्रापोलेट करते हैं, प्रोवाइडेड आवर सैंपल इज चोजन वेरी इंटेलिजेंटली। सो इससे आगे इसके बाद जो है दैट इज द एस्टिमेट की किस्में क्या होती हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड अ पॉइंट एस्टिमेट। A point estimate of a parameter is a number point on the real line, यानी अगर हम देखें तो we have this real line जो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लाए, तो इसमें कोई भी वैल्यू x या मे बी x1 कह लें, x2 कह लें, दिस कैन बी एनीथिंग जो कि ऑन रियल लाइन यानी रियल वैल्यू होगी। तो अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ अ पैरामीटर इज अ नंबर पॉइंट ऑन द रियल लाइन विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम अ गिवन सैंपल एंड सर्व्स एज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ अननोन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन। यानी पॉइंट एस्टिमेट जो होगा वो हम किसी सैंपल पे कोई पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे और उसको कहेंगे कि दिस इज द एस्टीमेट फॉर होल पॉपुलेशन। एंड देन वी टॉक अबाउट इंटरवल एस्टीमेट। एन इंटरवल एस्टीमेट इज एन इंटरवल, या जिसे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कहते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सैंपल। यानी ये एक इंटरवल होगा जिसको कि हम सैंपल से ऑब्टेन करेंगे कि इसमें यानी जो वैल्यू है दैट कैन लाई बिटवीन दीज वैल्यूज। यानी हम अगर कहें कि ये पॉइंट है, फॉर एग्जांपल वी सेड कि वी हैड अ वैल्यू x और x जो है दैट शुड बी बिटवीन x1 एंड x2। हम कितने कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं कि जो हमारा एस्टीमेट है दैट लाइज बिटवीन दीज टू एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। यानी ये इंटरवल एस्टीमेट किया है कि हमने जो मीन फॉर एग्जांपल एस्टीमेट किया ऑफ सम पॉपुलेशन दैट लाइज इन दिस इंटरवल। तो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो दैट कैन बी 95%, वी कैन हैव 90% वैल्यू, वी कैन हैव 99% वैल्यू, और वी मे हैव 99.9% वैल्यू। तो ये हम इंटरवल एस्टीमेट करते हैं कि हमने एस्टीमेट तो किया एक वैल्यू, लेकिन इंटरवल जो है वो किस तरह से यानी वो हम उसका एक इंटरवल भी देखते हैं कि अगर ये मीन जो है एक्चुअली तो मीन हमारा ये है, बट अगर हम ये इंटरवल डिफाइन कर दें
कि जो मीन है दैट विल लाई विद इन दीज वैल्यूज, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है दैट विल बी 95% कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है ना, यानी हमने कहा कि फॉर एग्जांपल वी कैलकुलेटेड मीन विद दिस इंटरवल, यानी जो हमारा इंटरवल है दैट कैन बी 4 to 6, और मीन जो है हमने 5 कैलकुलेट किया है। तो ये तो हमने कैलकुलेट किया फ्रॉम सैंपल, यानी सैंपल मीन जो है दैट इज इक्वल टू 5, और हमने कहा कि एक इंटरवल है 4 to 6 का। अगर हम ये डिफाइन कर लें तो ये सैंपल मीन जो है इसके सही होने की जो चांसेस हैं दैट विल बी 95% फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे आप हम इस कॉन्फिडेंस इंटरवल को जब डिटेल में देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा हम डिटेल में बात करेंगे, बट यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर हम ये कहें कि 99% सर्टेनिटी से हम कहते हैं कि ये वैल्यू उस इंटरवल में लाई करनी चाहिए, तो उसमें हो सकता है कि जो इंटरवल है हमारा दैट गेट्स लार्जर, यानी जितना बड़ा इंटरवल होगा हमारा एस्टीमेट का उतनी हमारी सर्टेनिटी ऑफ गेटिंग द मीन विल बी मोर। दैट वी विल सी इन मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करेंगे। अप्रॉक्सीमेशन ऑफ मीन एंड वेरिएंस, इसमें कोई नई चीज नहीं है, बस द डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ यही है कि हमने पॉपुलेशन और सैंपल के फर्क को समझना है। मीन ऑफ अ पॉपुलेशन कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द मीन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सैंपल, यानी हमने जो सैंपल चूज किया कोई n नंबर्स का x1 से xn तक, तो इसका मीन हमें पता है कि जो x बार है, या हम इसको x प्राइम भी कहते हैं या म्यू भी कहते हैं समटाइम्स, तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू summation 1/n xi/i is equal to 1 to n, which is यहाँ पे क्लोज फॉर्म में लिखा है, ये यहाँ पे यूँ लिख दिया। तो सैंपल मीन जो है वो तो हमें हमारे पास ये वैल्यू है या ये वैल्यू है, बट अगर हम पॉपुलेशन मीन की बात करें तो हम कहेंगे कि पॉपुलेशन मीन को भी हम कहते हैं कि पॉपुलेशन मीन भी यही होगा। तो ये हमने बेसिकली इस बात पे हमने पिछले कुछ 5-10 मिनट बात की कि जो हमारा सैंपल है दैट शुड बी केयरफुली चोजन, जब हमने उसके मीन को बेसिकली या उसके पैरामीटर्स को एक्सट्रापोलेट करना है ऑन होल पॉपुलेशन। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं BCS के लोगों की एज जो 4th सेमेस्टर BCS फोर्थ सेमेस्टर BCS पीपल जो हैं इनकी एज जो है दैट वुड बी लाइक FSC करने की इंटर करने की एवरेज एज लेट्स से 17 है, और 4th सेमेस्टर में यू रीच आफ्टर 2 years, तो एट 19 मोस्ट ऑफ द यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एज जो होगी दैट विल बी 19, किसी की 20 होगी, किसी की 18 होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इससे हम बेसिकली ये एस्टिमेट कर सकेंगे कि किसी भी BS प्रोग्राम के 4th सेमेस्टर के बच्चों की एज जो है दैट वुड बी 19, बट इससे हम ये एस्टिमेट नहीं कर सकेंगे कि किसी भी यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट या मतलब सारे स्टूडेंट्स की जो एवरेज एज है वो 19 होगी। दैट्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाय टेकिंग एग्जैक्ट सैंपल को जो केयरफुली चूज करने का वैल्यू जो है। इसी तरह से वेरिएंस जो है दैट इज बेसिकली s² इज इक्वल टू 1/n-1 समेशन j इज इक्वल टू 1 to n xi - x बार, यानी यहाँ पे हम म्यू यूज करते रहे हैं, अब ये हम x बार यूज कर रहे हैं,
तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ओनली नोटेशन का फ़र्क है। तो दिस रिलेशनशिप वेरिएंस कैलकुलेट करने का डिस्क्रीट केस में हम देख चुके हुए हैं, इसको हम यूज़ भी कर चुके हैं। इट्स द सेम, यानी मीन और वेरिएंस ऑफ अ सैंपल जो है दैट इज़ एक्सट्रापोलेटेड ऑन मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन। तो जो हम हैट के साथ वैल्यूज़ एस्टिमेट कर रहे हैं, दीज आर फॉर पॉपुलेशन, और जो ये वाली वैल्यूज़ हैं एक्स बार एंड एस जो है दे आर फॉर सैंपल, यानी ये पॉपुलेशन, मीन एंड वेरिएंस एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं, जबकि सैंपल की ये मीन एंड वेरिएंस हैं, ये एस्टिमेटेड नहीं है, ये कैलकुलेटेड है। ठीक है ना, ये हम डायरेक्टली रिलेशंस के साथ जो हमने ऑलरेडी सीखी हुई हैं उन रिलेशंस की मदद से हम एक्चुअली इनको कैलकुलेट करते हैं। सो अब हम देखते हैं जो एक बड़ी पॉपुलर टेक्निक है एस्टिमेट करने की ऑफ मीन एंड वेरिएंसेस, इसको हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड कहते हैं, या इन सम टाइम्स मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट भी कहते हैं। तो इसके लिए लेट्स कंसीडर अ डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, यानी वेरिएबल के कंटिन्यूस या डिस्क्रीट होने से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, टेक्निक विल रिमेन सेम। एक्स हुज प्रोबेबिलिटी फंक्शन, यानी डिस्क्रीट के केस में प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहलाएगा और कंटिन्यूस के केस में और डेंसिटी डिपेंड्स ऑन ए सिंगल पैरामीटर थीटा, राइट, यानी उसकी जो डेंसिटी फंक्शन है दैट डिपेंड्स ऑन थीटा। वी टेक अ कॉरेस्पॉन्डिंग सैंपल ऑफ n इंडिपेंडेंट वैल्यूज x1 थ्रू xn, यानी इस वेरिएबल की हम n इंडिपेंडेंट वैल्यूज ले लेते हैं। इंडिपेंडेंट वैल्यूज आप समझते हैं, यानी x1 जो है और x2 के दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं है, x1 कैन नॉट अफेक्ट x2 एंड वाइस वर्सा, एक दूसरे के को इफेक्ट नहीं करते। देन इन द discrete case the probability that a sample of size n consists precisely of those n values is, यानी इनकी जो probabilities होंगी at these points, हमें पता है कि fx1 is probability of that variable on that point, fx2 similarly and fxn as well। तो इन सब की probability ऑफ, यानी सारे जो हमने सैंपल्स लिए हैं इनके होने की प्रोबेबिलिटी, हम n सैंपल्स लें और वी गेट दीज, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इन सब प्रोबेबिलिटीज़ की प्रोडक्ट होगी ऑब्वियसली, विच इज़, उसको हम L से डिनोट कर रहे हैं। L इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ x2 मल्टीप्लाइड बाई सो ऑन अप टू एफ ऑफ xn। वाइल इन कंटिन्यूस केस हमें पता है कि हम किसी एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम एक इंटरवल की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसके अंदर उस वेरिएबल के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम क्या करते हैं कि फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम डेल्टा एक्स विड्थ के इंटरवल्स डिफाइन कर लेते हैं, जिनके के मिड पॉइंट्स जो हैं वो x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn है। तो उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं that they are between those intervals, they will be basically area of that interval, तो वो हमें f of x1 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा x और f of x2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा x2 से मिलेगा, यानी किसी एक की जो अंदर होने की प्रोबेबिलिटी है that will be f of for example if this is xi, f of xi मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा x, यानी रैंडम वेरिएबल xi के होने की प्रोबेबिलिटी विद इन दिस इंटरवल इज दिस मच। तो हम वी आर यूजिंग दिस, तो इसको हम लिख सकते हैं f of x1 इंटू डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई f of x2 इंटू डेल्टा एक्स
and so on up to f of x n delta x, which is equal to basically we can write it f of x1 multiplied by f of x2 and so on up to f of xn multiplied by delta x, क्योंकि ये n टर्म्स हैं और हर एक के साथ डेल्टा x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट विल बी लाइक दिस. तो ये जो चीज़ है इसको हमने इस जगह पे l कहा, तो दिस विल बी डेल्टा x टू दी n, यानी इस तरह से हम इसको इन कंटिन्यूस केस वी कैन कॉल इट डेल्टा x रेज टू पावर l इंटू डेल्टा x रेज टू पावर n. Since f of xj depends on theta, the function L depends on x1, x2, xn and theta. यानी L जो था वो क्या था, हम ज़रा अपनी यादाश्त के लिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं. अब हम ये कह रहे हैं कि f of xj जो था that was फंक्शन ऑफ थीटा बेसिकली, यानी ये थीटा पे डिपेंड कर रहा था, और L जो है दैट डिपेंड्स ऑन x1, x2 एंड सो ऑन अप टू xn. तो जो L होगा इन टोटल इट विल डिपेंड ऑन दीज वेरिएबल्स x1 से n तक एंड थीटा. नाउ लेट x1, x2, xn बी फिक्स्ड, यानी ये कोई हम कहते हैं कि ये कोई फिक्स्ड नंबर्स हैं. देन L इज अ फंक्शन ऑफ थीटा विच इज कॉल्ड लाइकलीहुड फंक्शन, यानी L को हम कहते हैं कि ये लाइकलीहुड फंक्शन है. नाउ वी चूज दैट अप्रोक्सीमेशन फॉर अननोन वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच L इज लार्ज एज पॉसिबल. यानी अब हम इसको वी चूज दैट अप्रोक्सीमेशन, यानी हमने लाइकलीहुड फंक्शन की जो अप्रोक्सीमेशन है उसको हमने चूज कर लिया एज लार्ज एज पॉसिबल फॉर थीटा. नाउ इफ L इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ थीटा, यानी L को अगर हम डिफरेंशिएट कर सकें तो हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट इज वेयर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है दैट इज 0. वो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी जिक्र किया था कि एट मैक्सिमा और मिनिमा जो स्लोप्स हैं दे आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है. इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एट एक्सट्रीम वैल्यूज इज 0. तो बेसिकली व्हाट वी डू इज द कॉन्फिडेंस, यानी हमें फिर इसका मतलब है कि पार्शियल L बाई पार्शियल थीटा जो है उसको 0 करके वी सॉल्व इट फॉर थीटा, तो हमें थीटा का जो है एक एस्टीमेट मिल जाएगा जो कि जिसकी मैक्सिमम लाइकलीहुड होगी. The solution of the above equation depends on x1 through xn and is called maximum likelihood estimate for theta. अब अगर हम इसको समटाइम्स सिंप्लीफाई करने के लिए वी कैन रिप्लेस, यानी पार्शियल L बाई पार्शियल थीटा को, और पार्शियल डेरिवेटिव हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि इसमें देयर आर अदर पैरामीटर्स x1, x2, x3 एंड xn. सो वी डू नॉट वांट टू मेक एनी कंफ्यूजन कि ये टोटल डेरिवेटिव है, क्योंकि हम मैक्सिमम लाइकलीहुड ऑफ थीटा देख रहे हैं, तो हमें दूसरे वेरिएबल्स जो हैं उनके अंदर वी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट. सो हम सिर्फ थीटा के हिसाब से थीटा के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे. वी विल नॉट डिफरेंशिएट एनी अदर पैरामीटर, तो अदर पैरामीटर्स विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट जब हम पार्शियल का साइन इस्तेमाल करते हैं. सो अब ये जो इक्वेशन है पार्शियल L बाई पार्शियल थीटा, दैट इज रिगार्डेड एज, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी पार्शियल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ L डिवाइडेड बाई पार्शियल थीटा, यानी बजाय इसके कि हम L का पार्शियल डेरिवेटिव लें, नेचुरल लॉग ऑफ L का हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं.
बेसिकली लॉग फंक्शन करता क्या है, उसका जो हमें एडवांटेज होता है वो यू मस्ट हैव अप्रिशिएटेड इट ऑलरेडी कि लॉग फंक्शन जो है वो बेसिकली चीज़ों को स्केल डाउन करता है। अगर हमारे पास चीज़ें जो हैं वो बहुत बड़े स्केल पे हैं और उसको हम लॉगरिथमिक स्केल पे ले आते हैं तो उनको हम थोड़ी जगह पे कंप्रेस कर सकते हैं। तो उससे बेसिकली व्हाट वी गेट इज के आवर स्केल गेट्स डाउन बट द ओवरऑल बिहेवियर जो है किसी भी ग्राफ का या किसी भी चीज़ का दैट डजंट चेंज। तो इसलिए एफ ऑफ हम जो किसी भी फंक्शन को उसके ग्राफ से उसके लॉग से रिप्लेस कर लेते हैं। एज एफ ऑफ एक्स जे इज पॉजिटिव यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं तो इसलिए ये वैल्यू तो नॉन नेगेटिव होंगी। नेगेटिव्स के लिए हमें पता है कि लॉग जो है वो डिफाइंड नहीं है। अ मैक्सिमम ऑफ एल इन जनरल इज पॉजिटिव यानी एल जो होगा उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। एंड नेचुरल लॉग ऑफ एल इज अ मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एल यानी अगर हम एल और नेचुरल लॉग ऑफ एल में देखें तो ये एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा और लॉग लेने से हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो सिंप्लीफाई हो जाती हैं। हमारे आंसर्स में कोई फर्क खास नहीं पड़ता। सो व्हाट वी डू इज कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड में वी डिफाइन दिस लाइक्लीहुड फंक्शन एल which is generally the product of the distribution उसके डिफरेंट जो पैरामीटर्स उसके डिफरेंट वेरिएबल्स हैं नॉट पैरामीटर्स एक ही पैरामीटर की डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए वी मेक अ लाइक्लीहुड फंक्शन यानी x1 x2 x3 के लिए वी विल मेक अ लाइक्लीहुड फंक्शन और उसका नेचुरल लॉग ऑफ l ले लेंगे हम उसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। विल सॉल्व दैट इक्वेशन उसको हम 0 के बराबर सेट करेंगे उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट एन एस्टीमेट फॉर थीटा। सो लेट्स ट्राई टू अप्लाई दिस मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट फाइंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट्स फॉर थीटा 1 यानी हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स को भी बेसिकली देख सकते हैं। थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू एंड थीटा 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा यानी वेरिएंस और मीन के लिए इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास क्या होती है एन जो है दैट इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स mu sigma is equal to 1 over 2 pi square root sigma e to the minus 1 by 2 x minus mu divided by sigma whole square। अगर हम इससे बेसिकली x1 x2 और x3 के लिए लिखना चाहें तो बेसिकली फॉर x1 राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एप्सिलॉन 2 पाई सिग्मा e टू दी माइनस 1 बाई 2 x1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा होल स्क्वायर। अगर हम x2 के लिए या xi या xj के लिए किसी जनरली लिखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट सिग्मा e टू दी माइनस 1 बाई 2 x1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा रादर xj माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम वी कैन राइट ऑल द टर्म्स। लाइक्लीहुड फंक्शन में लाइक दिस विल बी f of x1 this will be f of xj। तो likelihood function जो होगा that will actually be equal to product of from I is equal to 1 to n 1 over 2 pi
सिग्मा e to the minus 1 by 2 x j minus mu divided by sigma. This is squared. यानी इसकी सारे की ये प्रोडक्ट होगी. अब अगर हम इसको थोड़ा सा क्लोज फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो ये 1/2 पाई तो हर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम इसकी पावर n लिख सकते हैं. सेम इज विद सिग्मा, वी कैन राइट इट लाइक दिस. और e टू द पावर्स जो हैं दे नॉर्मली गेट एडेड इन केस ऑफ दिस. जब जो मल्टीप्लाई हम करते हैं तो जो उनकी एक्सपोनेंट्स होती हैं दे गेट एडेड. तो ये जो है यहाँ पे हम दिस विल बी इक्वल टू एक्चुअली समेशन ऑफ 1/2 सिग्मा स्क्वायर. ये समेशन जो होगा ओवर फ्रॉम i टू n होगा और यहाँ पे एक्स आई माइनस म्यू. रादर हमने जे सबस्क्रिप्ट यूज किया है तो हमें यहाँ पे जे यूज करना चाहिए. दिस विल बी विद नेगेटिव साइन. सो वी कैन राइट बेसिकली दिस फंक्शन एज 1/2 pi square root raised to power n into 1 over sigma raised to power n e to the minus h, where h is equal to 1/2 sigma square ये वाला and summation from j is equal to 1 to n x j minus mu whole squared. Now if we have to, अब हमारे पास लाइकलीहुड फंक्शन आ गया तो हम क्या करते हैं कि लाइकलीहुड फंक्शन को डायरेक्टली यूज करने की बजाय वी टेक नेचुरल लॉग ऑफ l which will be equal to natural log of this right hand side, which will be equal to 1/2 pi square root raised to power n my 1 over sigma raised to power n e to the minus h. और इसको हम obviously we can write it n natural log of 2 pi square root with negative sign. This is basically हम basic log rules को अगर हम देखें तो natural log of 1/2 pi square root का n जो है दैट विल बी के एक्सपोनेंट जो है वो मल्टीप्लाई होती है और जो डिवीजन है दैट कन्वर्ट्स टू सब्ट्रैक्शन. तो नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 पाई स्क्वायर रूट. नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है, इसलिए ये नेगेटिव साइन जो है ये हमें यहाँ पे मिल रहा है और वी आर गेटिंग n नेचुरल लॉग ऑफ 2 पाई. सो दिस इज इक्वल टू n नेचुरल लॉग ऑफ सिग्मा. सेम आर्गुमेंट यहाँ पे भी नेचुरल लॉग ऑफ 1 इज 0. तो ये भी दो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर कन्वर्टेड टू सम्स. तो सम होगा लेकिन बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड. देन वी विल हैव माइनस h क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ e जो है दैट इज इक्वल टू 1. तो माइनस h इंटू e नेचुरल लॉग ऑफ e विल बी इक्वल टू 0. सो हमने क्या करना होता है बेसिकली कि पार्शियल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ l पार्शियल थीटा. तो यहाँ पे हमारा पार्शियल थीटा 1 जो है दैट इज इक्वल टू म्यू. तो इसको हम म्यू से डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को. तो दिस डज नॉट इन्वॉल्व एनीथिंग दैट हैज म्यू. इसमें भी म्यू नहीं है तो ये दोनों वैल्यूज तो 0 हो जाएंगी.
we will have only this minus partial h by partial mu, क्योंकि mu सिर्फ इस हिस्से में हमें नजर आ रहा है। तो जब हम इसको बेसिकली देखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर, और summation will remain there for j is equal to 1 to n। चूंकि ये लीनियर ऑपरेटर है, पार्शियल डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन इज अ लीनियर ऑपरेटर, सो व्हाट वी कैन डू इज के इसको हम समेशन के अंदर भी लेके जा सकते हैं। तो वी विल हैव दिस 2, यानी पावर हम पहले लिखते हैं एक्स जे माइनस म्यू होल स्क्वायर, और म्यू का जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी माइनस साइन के साथ, और -1 आ जाएगा, और एक माइनस साइन ऑलरेडी हमारे पास इधर मौजूद है। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा, ये 2 जो है ये दिस विल बी कैंसल्ड, सो वी विल हैव दिस 1/सिग्मा स्क्वायर समेशन, बेसिकली दिस स्क्वायर विल नॉट बी देयर क्योंकि n-1 हम पावर करते हैं। सो दिस इज j इज इक्वल टू 1 to n and x I minus mu like this. So we can write it in this form, okay, -1/sigma square summation of I j is equal to 1 to n x I minus n mu। ये बेसिकली हमने इसको म्यू को सेपरेट कर दिया है फ्रॉम दिस समेशन। तो चूंकि हर मर्तबा जब हम x1 माइनस म्यू x2 माइनस म्यू, तो ये n टाइम्स माइनस म्यू होगा, तो हमें ये -n म्यू की टर्म जो है वो मिल जाएगी। n टाइम्स हमने म्यू को ऐड कर दिया, इस वजह से हमारे पास ये -n म्यू की टर्म आ रही है, विच इज नॉट नाउ बीइंग इफेक्टेड बाय दिस समेशन। इसको हम टू बी ऑन सेफ साइड यूं रख देते हैं। नाउ वी नो दैट कि for maximum likelihood estimate of any function, partial L natural log of n L ln L of with respect to theta is 0। तो हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की है अभी, दैट इज 1/sigma square into summation of from j is equal to 1 to n x j minus n mu जो है that is equal to 0। Now 1/sigma square cannot be 0, यानी अगर डेटा है जिसका मीन है तो वेरिएंस 0 होने का मतलब है कि वो सिर्फ एक ही वैल्यू है। अगर उसकी वैल्यूज डिफरेंट हैं तो वेरिएंस विल नॉट बी 0। तो दिस डज नॉट गिव अस एनी हेल्प इवन। तो हमारे पास जो चॉइस बचती है वो सिर्फ दूसरे फैक्टर की बचती है, विच इज j इज इक्वल टू 1 to n एक्स जे माइनस n mu इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज कि n टाइम्स म्यू जो है दैट इज इक्वल टू समेशन j इज इक्वल टू 1 to n और x j, दिस इंप्लाइज कि म्यू इज 1/n x j where j is equal to 1 to n। So this is the estimate of mu for normally distributed data, जिसको कि हमने कैलकुलेट किया यूजिंग मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन मेथड। नाउ वी हैव टू do the same thing for sigma as well।
कि हमने सिग्मा भी कैलकुलेट करना है. सो फॉर दिस वी विल डू द सेम. हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन तो सेम रहेगा, लेकिन वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा. तो दिस विल एक्चुअली बी, अगर हम नेचुरल लॉग ऑफ एल को दोबारा से लिख लें अपने सामने, नेचुरल लॉग ऑफ एल जो है बेसिकली दैट इज इक्वल टू माइनस एन नेचुरल लॉग ऑफ 2 पाई स्क्वायर रूट माइनस एन नेचुरल लॉग ऑफ सिग्मा माइनस एच. तो अब हम इसके ऊपर ये डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं. तो दिस टर्म डज नॉट हैव एनीथिंग इन्वॉल्विंग सिग्मा, तो ये तो जीरो हो जाएगी. यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस एन ओवर सिग्मा, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ सिग्मा का डेरिवेटिव जो होगा दैट विल बी नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर सिग्मा, या वेयर h जो है वेयर h इज इक्वल टू 1 ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n x j माइनस म्यू होल स्क्वायर्ड. तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस एन ओवर सिग्मा माइनस दिस, ये दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा क्यूब. बेसिकली ये 2 होगा और एक माइनस 2 बेसिकली यहाँ पे आएगा. रिमेनिंग जो फैक्टर है दैट विल रिमेन एज इट इज, क्योंकि for this sigma it is a constant value. So this turns out to be minus n over sigma plus 1 over sigma cube summation j is equal to 1 to n x j minus mu whole square. यहाँ पे मैं square मिस कर दिया. So this we can write it as 1 over sigma into 1 over sigma square j is equal to 1 to n x j minus mu whole squared minus this n. यानी यहाँ से मैंने सिग्मा कॉमन ले लिया 1 over sigma और इसको यूं लिख दिया. Now using the same criteria we have to set this value equal to 0. इसका मतलब ये है कि 1 over sigma into 1 over sigma square summation j is equal to 1 to n x j minus mu whole squared minus n is equal to 0. Now since 1 over sigma is not equal to 0, therefore only possibility जो है 1 over sigma square summation j is equal to 1 to n x j minus mu minus n जो है that is equal to 0. So this implies basically अगर हम इसको सिग्मा स्क्वायर जो है विल देन बी इक्वल टू सिग्मा j इज इक्वल टू 1 टू n x j माइनस म्यू होल स्क्वायर्ड और यहाँ पे 1 ओवर n है. और म्यू को वी कैन से कि यहाँ पे x बार है, तो जो सिग्मा स्क्वायर हैट है दैट कैन बी रिटन एज 1 ओवर n
summation j is equal to 1 to n xj minus x bar. So this is our estimate of variance using maximum likelihood estimation technique. So let's solve another example just to strengthen the concept जो कि हमने अभी सीखा है. Basically what we have to do is कि हमें एक likelihood function define करना पड़ता है. There are calculations but somewhat they are tedious but they are not very difficult. कि हमने जो procedure है that is very simple. I'll just summarize the procedure before starting the next example. कि हमने likelihood function define करना है which will be actually product of all the functions. यानी उसमें हमने सिर्फ x को x1 से लेके xn तक डिफाइन करके हमने प्रोडक्ट ऑफ दोज वेरिएबल्स या दोज फंक्शंस जो है उनको हमने एक लाइक्लीहुड फंक्शन के तौर पे लिख लेना है. द सेकंड स्टेप वुड बी वी हैव टू टेक नेचुरल लॉग ऑफ दैट वेरी फंक्शन. एंड थर्ड जो होगा टेक्निक, थर्ड जो स्टेप होगा इसका, दैट विल बी कि हमने उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल जो कि हम जैसे म्यू किया था या सिग्मा किया था. तो उनके लिए हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे. वी विल सेट दैट इक्वल टू 0 एंड देन वी विल बेसिकली सॉल्व दैट फॉर दैट पर्टिकुलर वेरिएबल और उसको हम जो है वी विल गेट दैट आंसर. नाउ व्हाट वी डू इज कि हम एक और एग्जांपल करते हैं. द सेम थिंग फॉर Poisson distribution. Find maximum likelihood estimate for theta 1 is equal to mu in the case of the Poisson distribution. ठीक है जी, Poisson distribution के लिए हमने MLE या maximum likelihood estimate find करना है. Directly I will write this likelihood function L which will be the product of I is equal to 1 to n. Before I write that, function of x जो होगा in this case will be e to the minus mu to the x divided by x factorial. So हमने करना क्या है कि x1 से लेके xn तक जो वैल्यूज हैं उनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है. तो जो कैपिटल पाई है दैट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट, हमने पिछले प्रॉब्लम में भी यूज की. जैसे सिग्मा जो है दैट इज यूज्ड फॉर समेशन, तो कैपिटल पाई जो है दैट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्ट्स. सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ e to the minus mu raised to power xi divided by xi factorial. So we can basically write it as e to the, यानी ये n times multiply होगा minus mu, तो this will become minus n mu, and mu की पावर्स जो होगी दैट विल बी समेशन xi वेयर i इज इक्वल टू 1 to n. पावर्स ऐड होती हैं, यहाँ पे भी पावर्स n टाइम्स ऐड हो गई, यहाँ पे भी पावर्स n टाइम्स ऐड हो गई, डिवाइडेड बाई दिस इज प्रोडक्ट विच इज फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to n xi फैक्टोरियल. अब लाइक्लीहुड फंक्शन का हम नेचुरल लॉग लेंगे. This will be equal to minus n mu. ठीक है, natural log of e जो है that is 1. This will be equal to summation I is equal to 1 to n xi natural log of mu minus natural log of
प्रोडक्ट ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई, जो कि समेशन ऑफ दीज इंडिविजुअल लॉग्स में कन्वर्ट हो जाएगा. बट सिंस वी हैव टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू म्यू, और ये वैल्यू जो है इट इज़ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू म्यू, ये ज़ीरो हो जाएगी, तो हमें इसके बारे में ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है. बट वी कैन स्टिल राइट इट एज समेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n. इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं. ये हमें बेसिक लॉग रूल से पता है. नाउ वी डिफ्रेंशिएट दिस लाइक्लीहुड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू म्यू. तो -n म्यू से हमें सिर्फ यहाँ पे -n मिल जाएगा, प्लस दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ म्यू का जो लॉग डेरिवेटिव होगा 1 over म्यू होगा, और ये समेशन जो है इट विल रिमेन एज इट इज बिकॉज दिस इज अ कोएफिशिएंट, एंड माइनस दिस इज 0 क्योंकि इसमें म्यू की कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है. सो व्हाट वी डू इज, नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज कि वी हैव टू सेट दिस पार्शियल ln of L डिवाइडेड बाई पार्शियल म्यू इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज के -n प्लस 1 over म्यू summation I is equal to 1 to n xi is equal to 0, and if we solve it for mu, तो mu जो है that turns out to be 1 over n I is equal to 1 to n xi, which it has to be, या इसको हम x बार भी कहते हैं या म्यू बार भी समटाइम्स कहते हैं. तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जो मीन है दैट इज एक्चुअली दिस, जो कि हमने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट से भी इवेल्युएट कर लिया. सो बेसिकली व्हाट वी डिड टुडे वाज कि हमने एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स सीखा. एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स करने के लिए हमने पॉपुलेशन और सैंपल के फ़र्क को समझा. पॉपुलेशन विल बी होल, सब लोगों के पास जाके वैल्यूज़ फाइंड करना, एंड सैंपल वुड बी कि हम किसी भी पॉइंट से उसकी एक नुमाइंदा, एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नुमाइंदा लोगों को चुन लेंगे, और उससे हम कहेंगे कि ये सारी चीज़ें, उसके ऊपर जो हम कैलकुलेशंस करेंगे दे विल बी एस्टिमेटेड फॉर होल पॉपुलेशन. तो सैंपल जो है दैट हैज़ टू बी चोजन केयरफुली. आफ्टर दैट वी लर्नड how can we estimate values using maximum likelihood estimate. तो उसमें हम करते ये हैं कि हम एक likelihood function define करते हैं x1 से लेके xn तक, वो उन functions का product के बराबर होता है. Then we take natural log of that L, यानी first we will define L जो कि f of product of I is equal to 1 to n xi होगा. सेकेंड स्टेप जो होगा दैट विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ L हम लेंगे. थर्ड स्टेप में इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल जो भी हमें चाहिए. एंड फोर्थ स्टेप में वी विल सेट दिस पार्शियल डेरिवेटिव equal to 0 and solve it for theta. That's it. Simple 4 steps हैं. थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है that is has to be done with cool mind. Otherwise इसमें कोई ऐसी tricky चीज़ नहीं है. So we will continue our discussion on these estimations in our next class as well. So until then, it's Allah Hafiz and goodbye.